Hello students, so we will start our session from PN junction as a rectifier. So for that we should know what is rectifier. So the process of converting AC energy into DC energy is called rectification. मतलब कि जो AC करंट है, AC एनर्जी है, उसको DC एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस जो है उसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं. बट ये क्यों ज़रूरी है? As we know, our mobile, our radio, our small devices all operating on a DC supply. So we know that in our home we all have a AC supply. We do not have a DC supply. So for that we need something that convert AC to DC. So what that device? That is called rectifier. The circuit device which perform this process is called the rectifier. और जो PN junction diode है, we can use PN junction diode as a rectifier. We can make it as a rectifier. We know that how the PN junction it's work. We just remember this concept that PN junction, when we connect PN junction with forward bias, it will like short circuit, or it will like closed loop. It will connect the closed loop and it will pass current. When we use a PN junction in a reverse bias, it will behave as a open circuit, or it will not complete the loop. It will not pass the current. So we have to remember that when it is in the PN junction is connected to forward bias, it will simply pass the current and complete the loop like a short circuit. And when we connect a PN junction in reverse bias, it will not pass the current. There is a small amount of leakage current, but not current as we can say in a forward bias. So it is behave like a open circuit. So in a rectification process, or as a rectifier, we have two types of rectifier: half wave rectifier and full wave rectifier. So from the name we can recognize what is half wave rectifier. That will on, or we can say it will pass only half wave. Let's see. The process of removing one half of the input signal to establish DC level is called the half wave rectification. मतलब कि जब हम AC सिग्नल पास करते हैं, ठीक है, तो वो जो है उसकी हाफ साइकिल जो है, मतलब 0 to 180 डिग्री का और 0 to पाई का, उतना ही वो जो है वो पास करेगा. बाद का जो पाई से 2 पाई का जो है वो पास नहीं करता, वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करता है, मतलब हाफ वेव ही पास करता है और उसको ही देता है. इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द रेक्टिफायर कंडक्ट करंट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल. मतलब कि जब उसे पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलता है, दैट इज 0 to पाई, तभी वो जो है वो इनपुट लेगा ऐसी सिग्नल का और हमें हाफ वेव जो है वो करके देगा. बाकी की जो नेगेटिव हाफ साइकिल होगी वो उसको रिमूव कर देगा, सप्रेस कर देगा, क्योंकि जब नेगेटिव हाफ साइकिल पास होगी तो वो जो है वो रिवर्स बायस में वर्क करेगा, जिसकी वजह से करंट जो है वो पास नहीं हो पाएगा. In figure we can see here, see this is the AC supply, this is the transformer part. Okay, so voltage appears across this transformer. So when the positive plus half cycle is, we can draw like that is a positive half cycle is applied. Okay, so on that positive half cycle, here is a positive, okay, and this one is the negative. So voltage appear, or V output appear across the load resistance, that will be maximum. But when on the time of a negative half cycle, this diode will connected as in a reverse bias, because then this side will be the negative, so the anode of this diode will be connected to negative and the cathode as a connected as at a positive. So there is a no load, मतलब current will appear across the load resistance, और डायोड में से जो है वो करंट पास नहीं होगा, मतलब कि ये जो लूप है वो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि रिवर्स बायस की वजह से, रिवर्स बायस में कनेक्ट उसको किया होने की वजह से जो उसका जो डिप्रेशन रीजन है उसकी विड्थ बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो करंट है वो और चार्ज कैरियर से वो फ्लो नहीं कर पाएंगे. Due to that this loop will not complete, or we did not get any voltage across the load resistance or output across the load resistance.
तो हमें आउटपुट कैसा मिलता है कि जब उसकी जो पॉजिटिव साइकिल जो है वो इनपुट में हम ये सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है। तो जब पॉजिटिव लिया तो करंट भी मिल रहा है और वोल्टेज भी मिल रहा है, बट ऑन द टाइम ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब कि दिस वन, तो वो है हमको वो पास नहीं हो रहा है क्योंकि ऑन द टाइम इट इज़ इन रिवर्स बायस कंडीशन। सो ये हमको करंट भी नहीं मिलेगा, वोल्टेज भी नहीं मिला। फिर अगर हम पॉजिटिव साइकिल लेते हैं तो पॉजिटिव साइकिल में हमको अगर अगेन करंट मिलेगा और अगेन वोल्टेज मिलेगा। तो ऐसे ही ये हाफ साइकिल जो है वो ऐसे पास होती रहेगी एंड वी विल गेट आउटपुट लाइक दिस। अब ये जो है वो आप सोच रहे हैं कि यूनी डायरेक्शन करंट जो है वो ऐसा होना चाहिए, बट दिस इज़ ऑल्सो नेगेटिव यूनी डायरेक्शनल करंट, क्योंकि विथ टाइम जो है वो करंट की मतलब कि करंट और वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, इट इज़ ओनली इन दी वन डायरेक्शन। सो दिस इज़ ऑल्सो डीसी करंट, ठीक है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर का ऑपरेशन देखते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया, AC voltage across secondary terminal AB changes its polarity after each half cycle. So here is the AB. So each after half cycle AB change its polarity like plus minus, then it will be on other half cycle it is minus and plus. During negative half cycle, terminal A is negative, so diode is a reverse bias and conducts no current. ठीक है, so diode in a reverse bias, on that time it will not conduct the current, so open circuit और loop complete नहीं हो रहा है because उसकी वजह से वो current जो है वो conduct नहीं कर रहा क्योंकि PN junction में depletion region की width है वो बढ़ जा रही है। Now current flows through diode during a पॉजिटिव हाफ साइकिल ओनली। तो अगर डायोड जब भी हम ले तो डायोड को जब भी फॉरवर्ड बायस से हमने कनेक्ट किया होगा, ऑन दैट टाइम ओनली इट विल कंडक्ट द करंट। सो इन दिस वे करंट फ्लोज थ्रू लोड RL इन वन डायरेक्शनल ओनली, सो दैट इज योर DC, ओके, वन डायरेक्शनल करंट और डायरेक्ट करंट। सो आउटपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर, अब उसकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगी कि जब पूरी एक सिग्नल चल रही है तब हमको एक ही पिक मिल रहा है, ठीक है। सो आउटपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू इनपुट फ्रिक्वेंसी, मतलब इनपुट में हम जो फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं वही फ्रिक्वेंसी हमको आउटपुट में मिल रही है ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल। तो ये हमको एक पिक मिला, फिर हाफ वेव के लिए हमको दूसरा पिक नहीं मिलता, जब दूसरा पिक मिलेगा तो दूसरी साइकिल के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जो हम इनपुट में दे रहे हैं वही हमें आउटपुट में मिल रहा है, तो उसकी वजह से F out is equal to F in. This means when input AC complete one cycle, rectified wave also complete one cycle. अब उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या हैं? The circuit of half wave rectifier is very simple and low cost. As we see कि सिंपली डायोड कनेक्ट किया है, उसके अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, ट्रांसफॉर्मर एंड AC सिग्नल दिया गया है। सो इट्स हैव अ वेरी इजी लो कॉस्ट सर्किट एंड वेरी सिंपल। अब उसका डिसएडवांटेज क्या है? एक तो जो है वो हाफ सिग्नल ही पास कर रहा है, ठीक है। सो दिस FC सप्लाई डिलीवर्स पावर ड्यूरिंग हाफ साइकिल, तो जो है हमें 50% तो हमारा लॉस हो जा रहा है, हाफ वे भी मिल रहा है। सो द pulsating current in output constant AC component whose frequency is equal to सप्लाई फ्रिक्वेंसी, जो इनपुट है आउटपुट वो दोनों सेम मिल रहा है, तो देयर इज नो फिल्टरिंग। नाउ फुल वेव रेक्टिफायर, अब हमने देखा हाफ वेव, उसमें मैंने बोला कि नाम पर से ही रिकॉग्नाइज हम कर सकते हैं कि हाफ वेव ही हमें आउटपुट में मिल रहा है और हाफ वेव ही एम्पलीफाई कर रहा है, सॉरी नॉट एम्पलीफाई, जस्ट इट विल फिल्टर कर रहा है। और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा कि वो हमें पूरा वेव दे रहा है, मतलब also on the time of positive cycle, also on the time of negative cycle. In a full wave rectification, current flows through the load in the same direction both half cycle or of input AC, ठीक है। This can be achieved with two diode working alternatively. अब इसमें क्या कहा लिया गया है, जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में देखा कि देयर इज ओनली वन डायोड इज कनेक्टेड, यहाँ पे उसके साथ दो डायोड की कनेक्ट की है, मतलब कि डायोड को कुछ ऐसे तरीके से कनेक्ट किया गया है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो वो जो है वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो वो पास करेगा। जब दूसरी हाफ साइकिल कनेक्ट होगी तो वो दूसरे डायोड से फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होगा और फर्स्ट वन से रिवर्स बायस में। सो फर्स्ट वन ऑन दैट टाइम इट विल नॉट कंडक्ट एंड द सेकंड डायोड विल कंडक्ट
because it will connected in a forward bias. We will see through the diagram. For a one half cycle, one diode supplies current to load, and for a next half cycle another diode is work. ठीक है, फॉर वन साइकिल मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तब फर्स्ट डायोड जो था वो वर्क कर रहा होगा, जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगी तब जो दूसरा डायोड है सेकेंड डायोड वो वर्क करेगा. नाउ उसको कैसे कनेक्ट किया गया है, तो उसको सेंटर टैप किया गया है. सो ऑल्सो वी कैन कॉल एज अ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर. तो सर्किट हैज कनेक्टेड टू डायोड्स दैट इज D1 एंड D2 एंड ऑल्सो सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर. तो उन्होंने क्या किया है कि ट्रांसफॉर्मर को जो है वो सेंटर से टैप किया गया है, जिसकी वजह से उसके दो पार्ट पड़ जाएगा. ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट हाफ साइकिल फर्स्ट डायोड का लूप कनेक्ट होगा ट्रांसफॉर्मर के साथ और सेकंड में सेकंड लूप कनेक्ट होगा. ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 कंडक्ट्स एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D2 कंडक्ट. It can be seen that current through load RL is in the same direction of both the cycle. Let's see. अब ये जो है वो सर्किट है. ठीक है, तो यहाँ पे हम AC सप्लाई कनेक्ट किया गया है. अब हम पूरी साइकिल रखते हैं, फिर हम उसमें हाफ वेव का वो देख लेंगे. ठीक है, ये हमारी साइकिल है. तो जब फर्स्ट वाला कनेक्ट होता है, ठीक है, अब यहाँ से उसको क्या गया है, यहाँ से उसको सेंटर टैप कर दिया गया है. ठीक है, उसको वहाँ से ग्राउंड कर दिया गया है सेंटर टैप. अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल पास होगी तो ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव आएगा. ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ तो सेंटर टैप कर दिया गया है, तो सोच लो कि यहाँ पे हम नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला, तो ये नेगेटिव होगा और यहाँ तो ये ग्राउंड हो जा रहा है, तो ये लूप कनेक्ट होगा नहीं, ये यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं देगा. मतलब कि आप ऐसे तरीके से याद रख सकते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे तरीके से याद रख सकते हैं कि जब उसकी पॉजिटिव साइकिल जो है वो पास हो रही है तब ये लूप कनेक्ट हो रहा है और ये लूप कनेक्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो तब ये लूप जो है वो वर्क कर रहा है. तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल पास होगी तो ये जो है वो फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा. ड्यू टू फॉरवर्ड बायस हमको अक्रॉस दी RL रेजिस्टेंस, अक्रॉस दी लोड रेजिस्टेंस हमको आउटपुट मिलेगा. यहाँ से सेंटर टैप किया गया. अब जब उसको और 180 डिग्री उसका फेज शिफ्ट है. ठीक है, शिफ्ट होगा डिफरेंस है. जब नेगेटिव हाफ साइकिल पास होगा तो क्या होगा, ये जो है वो नेगेटिव और ये जो है वो पॉजिटिव के जैसे वर्क करेगा. मतलब कि ये पूरा सिग्नल यहाँ पे गया, ये इसमें ने वर्क किया, फिर जो ये वाला पोर्शन है वो इसमें जाएगा, तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट करेगा और सिग्नल जो है वो लोड रेजिस्टेंस में हमको मिलेगा. अक्रॉस दी लोड रेजिस्टेंस हमको आउटपुट मिलेगा. तो ये जो है वो D1 D2 D1 D2 इससे वर्क मिलेगा कि जो पहला सिग्नल मिल रहा है तब D1 वर्क कर रहा है डायोड 1, जब दूसरा मिल रहा है तो D2, और वो 180 डिग्री उसको शिफ्ट करके हमको ऐसे देगा. अब फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर लेते हैं. तो फुल वेव जो ब्रिज रेक्टिफायर, ये जो था वो फुल वेव रेक्टिफायर था जिसमें सेंटर टैप जो था वो यूज़ किया गया था, ये वाला. ठीक है, तो हमको फुल वेव रेक्टिफायर में ये याद रखना है कि यहाँ पे सेंटर टैप करके यूज़ किया गया है. अब इसमें जो है वो फुल वेव तो लिया है. अगर हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हमको फर्स्ट में सेंटर टैप फुल रेक्टिफायर में मिल जा रहा था, ठीक है, फुल वेव, तो हमको फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की क्या ज़रूरत पड़ी. तो ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे कि जो सेंटर टैप है वो आइडली नहीं होगा, एग्जैक्टली नॉट फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, और वो ठीक से नहीं होगा, और उसमें जो प्रॉब्लम आ सकती है उसको दूर करने के लिए हमने ब्रिज, जो वेस्टर्न ब्रिज है उसमें जैसे हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं वैसे ही इसमें हमने फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर मतलब कि डायोड कनेक्ट किए हैं, 4 डायोड. ठीक है, तो उसमें हमको सेंटर टैप जो है वो नीडेड नहीं रहेगा. इन अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर 4 diodes are arranged in the form of bridge. The main advantage of this bridge circuit is that it does not require a special center tap transformer. ठीक है, तो इसमें स्पेशल सेंटर ट्रांसफॉर्मर जो है वो नहीं चाहिएगा. द सिग्नल सेकेंडरी वाइंडिंग सिंगल सेकेंड सो कनेक्टेड नहीं होगा. So the single secondary winding is connected to one side of the diode
ब्रिज नेटवर्क एंड द लोड टू अदर साइड। देखते हैं कि उसको कैसे कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट है जो उसमें भी था, बट यहाँ से कुछ डायोड का ऐसा कॉम्बिनेशन लिया है कि जो दो डायोड है वो एक साथ पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होके जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जा रही होगी, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल जा रही होगी तो दूसरे जो डायोड है दो है वो कनेक्टेड हो गए फॉरवर्ड बायस में, और दूसरे जो है वो दोनों रिवर्स बायस में कनेक्टेड हो गए। मतलब कि जो फर्स्ट हाफ साइकिल होगी तब दो डायोड वर्क करेंगे फॉरवर्ड बायस में और आउटपुट देगी। जब नेगेटिव हाफ साइकिल जा रही होगी तब दूसरे दो डायोड है वो वर्क करेंगे और आउटपुट देंगे। देखते हैं यहाँ पे हमारा सिग्नल ऐसा जा रहा है, ठीक है। सो ड्यूरिंग दैट पॉजिटिव साइकिल that D1 and D4 are working, and during that negative cycle D3 and D2 are working. Let's see. So जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने अप्लाई किया, ठीक है, यहाँ से ये वाला पोर्शन, तब ये जो डायोड है यहाँ से पॉजिटिव आएगा उसका, ठीक है, और यहाँ से जो है वो नेगेटिव होगा, ये आ गया। अब देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस मतलब पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये पॉजिटिव साइड आया D1 में और ये जो आया उसका नेगेटिव साइड, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो ये वर्क करेगा। अब देखते हैं ये D4 वाला, तो यहाँ पे वो नेगेटिव साइड से कनेक्ट हो रहा था तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव और ऊपर वाला पोर्शन हो गया उसका पॉजिटिव, तो ये भी हो गया फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, ठीक है। तो अब ये भी वर्क करेगा। तो ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल और ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 and D4 working, or voltage or a current across the load, we will get the output. So the same thing when the negative half cycle is past this portion, on that time this upper one is negative, lower one portion is positive, ठीक है। तो अब ये तो होगा वो नेगेटिव से कनेक्ट होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस नहीं जाएगा। सेम इसका जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कनेक्शन होगा जो रिवर्स बायस होगा, तो ये भी वर्क नहीं करेगा। अब ये नेगेटिव टू नेगेटिव हुआ और ये जो उसका लोअर वाला होगा वो पॉजिटिव होगा। सेम अगर यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो ये D3 और D2 है वो दोनों वर्क करेंगे और हमें यहाँ पे अक्रॉस द लोड आउटपुट मिलेगा। तो वर्किंग पता चल गया। इन शॉर्ट में याद रखना है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल जब होगा तो D1 और D4 वर्क करेंगे, ऐसे क्रॉस कनेक्शन होगा, ठीक है। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल पास होगा तो D3 और D2 वर्क करेगा, ऐसे क्रॉस कनेक्शन में। तो क्रॉस कनेक्शन याद रखना है कि चौकड़ी बनाना है बीच में और डेंसर का साइन, ठीक है, क्रॉस कनेक्शन D1 और D4 और D3 और D2। अब आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर का जैसे हमें सेंटर टेप में मिल रहा था वैसे ही हमें फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में मिलेगा। दोनों में आउटपुट जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ हमको जो सेंटर टेप में दिक्कत हो रही थी, जो आइडली नहीं हो रहा था, वो हमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज इक्वल टू द डबल ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी से डबल मिलेगा। This means when input AC complete one cycle, rectified wave complete two cycle। ये जो है वो एक साइकिल जो है वो कंप्लीट करेगा ये, ठीक है। तब तक हमें यहाँ पे एक और दो ऐसे दो साइकिल मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल होगी फ्रॉम द हाफ वेव रेक्टिफायर और ऑल्सो फ्रॉम द ऑन द बेस ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब उसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो एक तो एडवांटेजेस ये है, अगर हम हाफ वेव का और फुल वेव रेक्टिफायर को कंसीडर करें तो वहाँ पे जो था वो हाफ सिग्नल ही पास हो रहा था, नीचे वाला पोर्शन है वो नहीं पास हो रहा था, ठीक है। तो हमारी हाफ एनर्जी जो थी वो तो लॉस हो ही जा रही थी। इन दिस केस ये जो है वो लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। बट सेंटर टैप जो था वो अब हमको नहीं करना पड़ेगा एज वी कंसीडर और कंपेयर to full wave rectifier to full wave bridge rectifier, so no need of center tap। और जो आउटपुट था जो हमारा वो हमको डबल मिलेगा, आउटपुट इज ट्वाइस देन द सेंटर टैप सर्किट दैट ऑफ अ सेंटर टैप सर्किट कंपेयर टू द हाफ वेव सर्किट। अब डिसएडवांटेज देखते हैं उस, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, हमने हाफ वेव में देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो था उसमें हमको सिर्फ एक ही डायोड का ही ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक है, हाफ वेव में।
फुल वेव में हमने देखा सेंटर टेप जो था उसमें हमने 2 यूज़ किए, ठीक है। और जब हमने ये ब्रिज वाला देखा, ठीक है, ब्रिज वाला, तो उसमें हमने 4 डायोड यूज़ किए। तो दैट इज़ इट्स डिसएडवांटेज कि यहाँ पे हमको 4 डायोड्स की रिक्वायर हो रही है और इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप इज़ ट्वाइस, तो ट्वाइस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप हो रहा है देन दी सेंटर टेप, क्योंकि हमने 4 जो है वो यूज़ किए हैं डायोड इसी वजह से। तो हम यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा जो है वो आपका रेक्टिफिकेशन का ख़त्म हो जाता है। अगर रेक्टिफायर में हाफ वेव, फुल वेव या ब्रिज रेक्टिफायर में किसी को दिक्कत है तो वो मुझे पूछ सकता है, ठीक है, थ्रू व्हाट्सअप और थ्रू दी कॉल, ओके। और आप या अगर पॉसिबल हो आ सकते हो तो यहाँ पे भी आके हमसे सीख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।